কওকচোন হয় এজনক দেখিছে নেকি? কালি নে পৰহি দেখিছিলোঁ। ক'ত গ'ল? ৰ'ব দে, মনত পেলাব লাগিব। মনত পৰিছে। মই আহি থাকোঁতে দেখিছোঁ তাৰ বাইক বেয়া হৈছে। মোক হেল্প বিচাৰিছিল। মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, বাইকে ঠিক নহ'ল। তাৰপিছত সি গুচি গ'ল। আৰু ল'ৰাজন? নাজানো নহয়। বাইকখন ক'ত বেয়া হৈছিল? এইফালে বেয়া হৈছিল। ঠিক আছে, আহা বহা। মামা মোক মাতিছিলা? বহ। থানাৰ পৰা কিবা খবৰ পাইছনে? নাই পোৱা। মই ৰাতিপুৱা খবৰ কৰিছিলোঁ, সিহঁতে বিচাৰি আছো বুলি কৈছে। তই নহ'লে এইকেইদিন বৰ বেছিকে বাহিৰত ঘূৰা ফুৰা নকৰিবিচোন। কোন সময়ত সি কি ঘটনা ঘটাই তই একো ক'ব নোৱাৰ। ঘটনা মইহে ঘটাম, মাত্ৰ তাক এবাৰ লগ পাবলৈ দিয়ক। সকলো সমস্যা খঙেৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰি নহয়। আফটাৰ অল তাৰ হাতত এটা পিষ্টল আছে। তোক অকলে পালে কেনেবাকৈ যদি তাৰ ইমান সাহস নাই। তাৰমানে মোৰ কথা নুশুন? বাকীবোৰ শুনিম, কিন্তু এইটো কথা নুশুনো। তাৰ ভয়ত কি মই এতিয়া ঘৰত সোমাই থাকিম নেকি? মন, ইয়াতে আছে যেতিয়া মোৰ অনুমান সি ওচৰে পাজৰে থাকিব। বৰ্মন থকা হ'লে ছাৰ বহুতখিনিয়ে সুবিধা হ'লহেঁতেন। এটা কাম কৰা, ফোন এটা কৰা। ঠিক আছে ছাৰ। নাই ছাৰ, ফোনটো ছুইচ অফ আছে। মাজে সময়ে ট্ৰাই কৰি থাকিলেই হ'ল, আৰু ফোনত যেতিয়া পোৱা নহয় থানালৈ মাতা বুলি ক'বা। ঠিক আছে ছাৰ। আপুনি ইয়াত অকলে অকলে বহি আছে যে? হেৰি, কি হ'লনো? কওক আকৌ কথাটো কি হ'ল? বমন দা, এতিয়া আৰু ক'ৰবাত যাব নেকি? ইয়াক যদি মই এবাৰ লগ পাওঁ নহয়, তাৰ অত্যাচাৰ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে। সি এইটো কাম কৰিছে বুলি মই জনা নাছিলো নহয়। আৰু যদি মই আগতে গম পালোহেঁতেন নহয়, মই নিজেও বুকুত গুলুখাই হলেও তাক মই যাব নিদিলোহেঁতেন। আৰু কিবা কৰিলে নেকি? মনত এতিয়া ক'ত আছে তুমি জানা? ক'ত? মোমায়েকৰ ঘৰত। কিয়? অমৰে ঘৰটো বেচি দিলে। কি? কোনে ক'লে আপোনাক? মনলৈ এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিলো, তেতিয়াই কথাখিনি ক'লে মোক। নাই আমি আৰু উলিয়াব পাৰিলে নহয়, ময়েই তাৰ প্ৰথমতে জীৱন ল'ম। বাৰু বলক, থানাটো এপাক খবৰ লৈ আহোঁগৈ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাব লাগিব নহয়। ব'লা। বৰ বেয়া লাগিল, মই নোযোৱা হলেই ভাল আছিল। আহা, কথাবোৰ ভালকে বুজাই কওকচোন, কি হ'ল? মানুহবোৰক দেখি মোৰে বেয়া লাগিল। মুখবোৰনি চাবই নোৱাৰি। মনৰ মাকৰ লগততো মোৰ কথা পতাৰ সম্ভৱেই নহল। মোমায়েকৰ ঘৰলৈ আহি থাকোঁতেই তেওঁৰ প্ৰেছাৰো বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া বিচনাতে পৰি আছে। সেইবোৰ চিন্তাতে চাগে মানুহজনীৰ এই অৱস্থা। অমৰক মুঠতে সোনকালে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব লাগে। তাকে আমিতো চেষ্টা কৰিয়ে আছো, বাকী এতিয়া আপোনালোকৰ সহায় লাগিব। হয় ছাৰ, কওক কি সহায় কৰিম? অমৰৰ লাষ্ট লোকেশ্যনটো খাৰঘুলিত ওলাইছে। আপোনাৰ ঘৰ যিহেতু খাৰঘুলিতে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সহায় কৰিব লাগিব। কৰিম ছাৰ, যিমান সহায় কৰিব লাগে সিমানখিনি কৰিম।
আজি আমি সেইফালে গৈছিলোঁ 2 মানুহক খবৰ সুধিলোঁ কিন্তু কোনেও উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে কিন্তু আপুনি যিহেতু সেইটো এৰিয়াতেই থাকে আপোনাৰ নিশ্চয় চিনাকি মানুহ আছে সোধপোছ কৰিলে আপুনি হয়তো কিবা এটা খবৰ পাই যাব পাৰে আৰু মোৰ বিশ্বাস সি সেইটো এৰিয়াতে আছে ঠিক আছে ছাৰ যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সিমানখিনি কষ্ট কৰিম থেংক ইউ এতিয়া আহোঁ ছাৰ ভাল ভাল গোস্বামী হয় ছাৰ নম্বৰটো আছে নহয় আছে ছাৰ এটা কাম কৰক ট্ৰাই কৰি থাকিব ঠিক আছে হয়তো আজি সি ফোনটো খুলিব পাৰে কোৱা কিবা খবৰ পাইছা সকলোৱে বিচাৰি আছে প্ৰতিটো ৰাস্তাত চেকপোষ্ট বহাইছে মই এনেকুৱা কি ডাঙৰ কাম কৰিলোঁ মোক ধৰিবৰ কাৰণে যে উঠি পৰি লাগিছে মাইনীক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কোম্পানীটো নিজৰ নামত কৰি লোৱা কোম্পানীৰ ডুপ্লিকেট চাইনবোৰ আদিবোৰ লোৱা কম ডাঙৰ কথা নেকি তাতে যিয়ে কেছটো লৈছে তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কিনি পেলোৱা তেওঁক চিনাকি কোনোবা হোৱা হ'লে মইতো তাকেই কৰিলোহেঁতেন কিন্তু এইজন নতুন চিনাকি একদম নাই মোৰ তাৰ লগত এটা কাম কৰিবা কাইলৈ গৈ পেলাই এপাক চিনাকি হৈ আহিবা হ'ব আৰু শুনা তালৈ যোৱাৰ আগত মোক এবাৰ লগ কৰি যাবা প্ৰথমবাৰ যাবা খালী হাতে গ'লে হয়তো বেয়া পাব পাৰে কিবা এটা লৈ যাবা ক'লৈ যাম বৰ্মন খুৰা দেই কেনেবাকৈ কাৰোবাৰ যদি সন্দেহ হয় সন্দেহৰ একো ভয় নাই বৰ্মন খুৰা ওলাই যাব মই ফোন কৰি দিম তুমি আহি যাবা সঁচাকে মানুহক বিশ্বাস কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা হৈছে মাক দেউতাক নোহোৱা ল'ৰাটোক মনৰ মাকে ইমান আদৰ যতন কৰি নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা ডাঙৰ কৰিলে সেই অমৰেই তেওঁৰেই ছোৱালীক মাৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে তাক আচলতে মনতে চিনিয়ে নাপালে সি এটা চূড়ান্ত স্বাৰ্থপৰ মানুহ নহ'লেনো সি ঘৰটো এনেকৈ বিক্ৰী কৰি দিয়েনে কম দুখ পাইছেনে মনৰ মাকে গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাইত আশ্ৰয় নাই ভাগ্য ভাল মোমায়েকে সেইদিনা সেই বিল্ডিংটো কিনিছিল বুলি নহ'লেতো তেওঁলোক আজি ৰাস্তাত থাকিব লগা হ'লহেঁতেন সমস্যা এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই মোমায়েকৰ ঘৰ হ'ল বুলিয়ে সদায়তো তাত থাকিব নোৱাৰে ঐ এওঁলোকে লৈ আহক হে তই কেতিয়া আহিলে মই কেইটাবে আহিলো আপোনালোকৰ কথাবিলাক মই শুনি আছিলো বৰ দুখ পালো হে ককাইদেউ কথাবিলাক শুনি আজি দিনতো এনেকুৱা নিৰ্দয় মানুহ থাকবা লাগে না আপুনিয়ে কওকচোন আজি মই ভাত খাবই নোৱাৰিম বুজি পাইছি না বৰ দুখ পাইছো গম পাইছি না নাই এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল বৈদ্য দুখ পাইছো এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল ককাইদেউ আপোনালোকক ই গম পালে যেতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় গোটেইখনতে গাই বৈ ফুৰিবগৈ এতিয়া তাকনো আপুনি লগত ইয়ালৈ কিয় লৈ আহিছিলে আৰে মই কেতিয়া আনিলো মই বহি থকা এখন তুমি নিজে দেখিছিলা সি আহি ওলাইছেহি সি আহিলে মাত এষাৰটো লগাব লাগে এনেকে চোৰৰ দৰে আহি কথা শুনি থাকিব লাগে নে সি বেছি দূৰ যোৱা নাই আপুনি হওক আৰু কথাবোৰ কওক যাতে সি এইবোৰ গোটেই গাই নুফুৰে নেযায় কিয় যাওক আকৌ ধনজিত ধনজিত নীলিম মই এটা কথা ভাবি পোৱা নাই মোৰ ঘৰটোতো সেইফালে বুলি অমৰে ভালকে জানে তাৰপিছতো সেইফালে কিয় থাকিল নাই নাই মোৰ মতে সি হোটেলত নাথাকে সি জানে পুলিচে এতিয়া অনুসন্ধান চলাই আছে আৰু গোটেইবোৰ হোটেলত খবৰ কৰিবই পুলিচে মোৰ মতে সি কাৰোবাৰ ঘৰত মানে গেষ্ট হাউচত আছে আপুনি চিনি পায় নেকি গেষ্ট হাউচবোৰ চিনি পাওঁ আগৰ কেইটাতো ভাল ধৰণে চিনি পাওঁ আজিকালি আৰু নতুনকে ঘৰে ঘৰে গেষ্ট হাউচ হৈছে নহয় এপাক যায় নেকি তালৈ এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল এটা কাম কৰিম দিয়া কাইলৈকে যাম তেতিয়া অকণমান হ'ব ঠিক আছে মই আহিম বাৰু এপাক কৈ থাকো দিয়ক যোৱা ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিবা হ'ব
বিপদত পেলাব বিচাৰিছে কোৱাচোন? মোক বন্ধ ৰাখিলে আপোনাৰো বিপদ নহয়, মোৰো নহয়। এনেকৈ তুমি আৰু ইয়াত কিমান দিন থাকিবা? বেছি দিন নাথাকোঁ। পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। মোৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈছে জানানে? তুমি যিমান সোনকালে পাৰা ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। নহ'লে এওঁক কথাটো ক'বলৈ দিয়া। মই এনেকৈ অকলে টেনশ্যন লৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। হেডফোন আছে? হেডফোন আছে? হা? নাই। আছে আছে। লৈ আহক। ফোনটো আজি মোৰ হাতত থাকিব। ছাৰ, বৰ্মন খুৰাৰ বাহিৰে মোৰ সেইফালে আৰু চিনাকি মানুহ নাই। আচ্ছা, অমৰৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু কোন আছিল? মই জনাত তেওঁ তেনেকুৱা কোনো নাই। শুনিছিলোঁ বিক্ৰম বুলি এজন আছিলে বোলে। তাৰ নম্বৰ আছে? নাই। ফটো? নাই। কাৰোবাৰ পৰা কালেক্ট কৰি দিব পাৰিব? চেষ্টা কৰি চাম বাৰু। এইটো কলিতা, আপোনাৰ নম্বৰটো দি দিয়ক। তেখেতৰ নম্বৰটো আপুনি ফটোখন ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ক। ঠিক আছে ছাৰ। আৰু এটা কাম কৰিব, গোটেই থানাবোৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। য'তেই এই ল'ৰাজনক পাই ধৰিব লাগিব। মই এতিয়া যাওক। আৰু যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাই লগে লগে আমাক জনাই দিব। ঠিক আছে ছাৰ। অনিতা, তোমাক ইমান ফোন কৰি আছো, তুমি ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই যে? ফোনটো লগত থাকিলেহে। আৰে কি হ'ল ফোনটো? ফোনটো হাতত লৈ থকা নাছিলো যে। আৰে তুমি ইমান ভয় খাই আছা কিয়? ৰবা, তুমি ইমান ভয় খাই আছা কিয়? নাজানো কিয়, বহুত ভয় লাগিছে। ভয় কৰিবলগীয়া ইয়াতে কি আছে? পুলিচে অমৰৰ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে। কি? পুলিচৰ সন্দেহ সি হেনো আমাৰ এইখিনি জেগাতে ক'ৰবাত লুকাই আছে। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सॉल्ट बनते कैसे हैं। सॉल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के, जो कि होता है अल्कलाइन और एसिड के दरमियान। सॉल्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं और इनका हमारी बॉडी में, और ये हमारी बॉडी हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, और इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो मेन यूज बताता हूँ जो हमारी बॉडी में यूज होते हैं। सबसे पहले सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स, वो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद आयोडीन के सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और ये गॉइटर के ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है। हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl, उसको हमने खाने में यूज करते हैं। इसके अलावा बेकिंग पाउडर, वो भी एक सॉल्ट्स में ही है, और वॉशिंग सोडा भी एक सॉल्ट्स में ही आता है। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए यूज होता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है ब्रेड्स को और केक को। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंडस्ट्रीज में इनके यूज क्या होते हैं। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड NaCl, जो काफी कॉमन सॉल्ट है, वो यूज होता है क्लोराइड बनाने के लिए फैक्ट्रीज में। इसके इसके अलावा जो है वो पोटाशियम क्लोराइड जो है वो एक फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है, और इसके अलावा ये फायरवर्क्स यानी कि पटाखों और गन पाउडर यानी कि बारूद बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसके इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट जो होता है
वो भी एक बहुत जरूरी सॉल्ट है, क्योंकि ये हार्ड वाटर को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो नॉर्मली ह्यूमंस नहीं पी सकते, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। और सॉल्ट वाटर वो होता है जो सारे इंसान पी सकते हैं, उसका पीएच भी बिल्कुल सही होता है, और वो बिल्कुल साफ होता है। अब मैं आपको बताऊंगा पीएच स्केल और पीएच मीटर के बारे में। एसिड और एल्कलाइन की एक स्ट्रेंथ होती है, और इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल को मेजर करने के लिए पीएच पेपर यूज होता है, जिसको यूनिवर्सल पेपर भी कहते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं। ये रेड टू येलो, ये ऑरेंज टू येलो, और उसके बाद रेड होता है जैसे जैसे पीएच कम होता है। और मैं आपको बता दूं कि पीएच जो होता है 7 से नीचे होता है वो सोल्यूशन एसिडिक होता है, यानी कि वो खट्टा होता है टेस्ट में, और इससे ऊपर होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है, या फिर आप इसे अल्कलाइन सोल्यूशन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो उनसे एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि जो उनसे ज्यादा इफेक्टिव एसिड होते हैं उनका पीएच होता है 0 से 2। और जो उनसे वीक होते हैं, यानी कि जिनके अंदर ज्यादा जोर नहीं होता, वो होते हैं 3 to 6। 7 बिल्कुल नॉर्मल है, और ये वाटर में ही होता है। इसके बाद 8 to 11 जो होता है वो वीक अल्कलाइज का होता है, और 12 to 14 होता है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज का होता है। पीएच मीटर की सिर्फ रेंज 0 से 14 होती है, इसके ऊपर या नीचे नहीं है जाते। अब पीएच को बिल्कुल सही से मेजर करने के लिए हम लोग पीएच मीटर का यूज करते हैं। अब पीएच मीटर जो होता है उसमें उसकी जो सी आगे वाली होती है उसको डिप करते हैं हम लोग उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और फिर वो उसका हमें एग्जैक्ट पीएच बता देता है। इसके अलावा किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए बिना किसी पीएच मीटर के कि वो एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है, हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। क्योंकि बहुत से जो होते हैं वो एसिड्स और बेसिस होती हैं वो कलरलेस होती हैं। अब कुछ फिनोल पैथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, उसके अलावा लिटमस, रेड कैबेज, चाइना रोज वगैरह वगैरह कुछ कलर हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, या तो ये क्रिस्टल की तरह होते हैं, या तो फिर ये पाउडर फॉर्म में होते हैं नेचुरली। अब ये जो होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और इसके अलावा इनमें से कुछ सॉल्ट जो है वो कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि जो उनसे मेटल सॉल्ट्स होते हैं जैसे फेरिक क्लोराइड हो गया, या फिर उनकी मॉडर्न फॉर्म्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसके अलावा आप सबको तो पता ही है कि सॉल्ट का जो होता है वो टेस्ट नमकीन होता है। इसके अलावा जो उनसे बहुत बहुत ज्यादा जो उनसे हैं वो सॉल्ट्स वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर हल हो सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, जैसे कि कैडमियम सल्फेट हो गया, या फिर लेड क्लोराइड हो गया। ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, ये प्रेसिपिटेट्स बन के घूमते रहते हैं। प्रेसिपिटेट्स वो सॉलिड चीज होती है जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती और वाटर के ऊपर घूमती रहती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जैसे NO2 CO3 वगैरह ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के लिए या फिर उसको निकालने के लिए करते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि 2HCl, ये मिला के बनाते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इसी तरह इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब आप सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये मिलके एक एसिड और एक बेस बनाता है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और उसके बाद इसकी एक और ये प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर जो से एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर जो से मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से इनकी क्रिस्टल शेप होती है। तो यानी कि क्रिस्टल जो सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली वाटर होता है, और वो इसकी मेन रीजन होता है कि ये इस शेप में होते हैं, क्रिस्टल शेप में। उसके अलावा एसिड्स होते हैं वो हमेशा खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो मिनरल एसिड और एक होते हैं नेचुरल एसिड। अब जो उनसे नेचुरल होते हैं वो तो हमें मिलते हैं एनिमल से या प्लांट से, और दूसरे हमें दूसरी चीजों से मिलते हैं। एनिमल प्लांट से जो सा मिलेगा उसमें एक एसिटिक एसिड है,
जो कि हमारे विनेगर या फिर सिरके में यूज होते हैं। उसके अलावा जो सा वो टर्टेरिक एसिड वो टर्मेरिन में यूज होता है, या फिर ग्रेप्स जिसे अंगूर कहते हैं उसमें भी होता है। उसके अलावा जो है वो एक मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको बहुत से लोग जानते होते हैं। और इसके अलावा एक कार्बोनिक एसिड है जो कि H2 जिसका फॉर्मूला H2CO3। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो उनसे होते हैं वो बहुत जो उनसे इनकी लिक्विड फॉर्म होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। ये फैब्रिक को भी जला सकती हैं, और इसके अलावा ये एनिमल के टिश्यूज तक को भी तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि जो कि मैंने आपको सॉल्ट्स के अंदर बताई थी कि जब ये किसी बेस के साथ मिक्स प्रोसेस करता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, तो एक सॉल्ट भी बनाता है और एक वाटर भी देते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, और एस, और एसिड्स की बहुत सी जगह पे यूज होते हैं। ये जो होते हैं ये बहुत सी प्लास्टर्स वगैरह के अंदर यूज होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसे नमक बनता है जो कि हमारे खानों के अंदर यूज होता है, जिसकी मैंने आपको अभी कुछ यूजेस बताए हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बेस की। एल्कलीज जो होते हैं वो बिल्कुल होते हैं एसिड्स का उल्टा, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो अपने अंदर हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयंस। और जो उनसे अल्कलाइज या बेसिस होती हैं वो OH नेगेटिव बनाती हैं। तो बेस और अल्कली में ये फर्क होता है कि जो उनसी अल्कलाई होती है ना, वो हर अल्कलाई वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती, और अल्कलाई में से जो सी जो है वाटर के अंदर वो डिजोल्व हो सकती हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। और जो है वो एसिड का ये भी उन अल्कलाइज के साथ रिएक्ट नहीं करता जो बेसिस नहीं होती, यानी कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती हैं वो सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ अभी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में हमने सॉल्ट की पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा बनाती हैं। और बेसिकली हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है, हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है इसके बारे में जो उनसे भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी पैदा करती है, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से पैदा करती है। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट पे होता है, PNS और CNS। PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये एक नर्व्स का पूरे नर्व्स का नेटवर्क होता है जो कि पूरी बॉडी को जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सारे मैसेज वगैरह प्रोड्यूस करता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारा दिमाग और एक हमारी स्पाइनल कोड। अब हमारी स्पाइनल कोड और दिमाग दोनों आपस में मिलते हैं, और ब्रेन का एक पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा और स्पाइनल कोड वो जगह जहाँ पे मिलती है। ये पूरी हमारी रीढ़ के अंदर स्पाइनल कोड दौड़ती है, और इसी की वजह से हमारी कमर पूरी मूवमेंट कर पाती है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। मतलब कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होना, या फिर किसी कीड़े का काट लेना, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें हल्का सा भी कोई नुकसान पहुंचता है वो स्टिमुलाई है। और इसका जो है ना वो जवाब हमारे सेल देते हैं। तो अब ये सेल जो है वो आगे पहुंचाते हैं हमारे नर्व्स की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं उसके बाद वो आगे नर्व्स तक पहुंचाती हैं, फिर वो नर्व्स पहुंचाती हैं दिमाग तक, और फिर दिमाग सिग्नल देता है हमारे मसल्स को, यानी कि इफेक्टर्स को, यानी कि जो उनसे इफेक्ट करती हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा हाथ है, इसके ऊपर एक चूंटी ने काटा है। अब मैंने उस चूंटी ने जब काटा तो मुझे दर्द होगी, तो ये सिग्नल मेरे दिमाग तक जाएंगे, फिर मेरा दिमाग प्रोड्यूस करेगा कि ये क्या चीज है, और फिर वो पता लगाएगा कि ये जो इसको किस पार्ट की तरफ भेजना है, कि यानी कि हमारे हेड के मसल की तरफ भेजना है, नेक के मसल की तरफ भेजना है, या फिर किसी और चीज की तरफ भेजना है। तो अब ये फिर मेरा दिमाग सिग्नल भेजेगा मेरे बाजू को कि इस साथ ये बड़े चूंटी काटे, तुम उसको उठाओ, और मैं जल्दी से या तो उसको मार दूंगा या तो उसको उठा दूंगा। और ये सारा कुछ बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये नर्व्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं टर्मिनल एंड से, जिन्हें हम एक्सोन के आगे जो उनसे टर्मिनल एंड होते हैं उनसे कनेक्ट होती है। और मैं आपको आगे इसकी जो है वो पार्ट्स इसके जो है वो नर्व सेल के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। नर्व सेल या न्यूरॉन दोनों में से आप इसको कोई भी कह सकते हैं, और ये नर्व्स का एक बंडल होता है, और ये उसका मेन पार्ट होता है। जैसा कि पता है कि सेल हमारी बॉडी में हर काम के लिए सबसे मेन जो फंक्शनल होता है वो पार्ट होता है, वो हमारा सेल होता है। और इसी तरह नर्वस सिस्टम के अंदर जो सा सबसे पहला फंक्शनल होता है वो होता है सेल। अब उसके बाद सेल से हमारे को टिश्यू बनते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे इसमें मदद करते हैं। अब इन स्पेशल टिश्यूज में मैंने आपको जैसे बता दिया है, नर्व सेल हो गया, और इसके आगे 3 टाइप्स होती हैं। और इसी तरह
इसी तरह से कुछ टिश्यूज होते हैं और इसके पार्ट्स में आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ गया। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो होती है कुछ किस्म की नर्व्स होती हैं और जो उनसे दिमाग में नर्व्स होती हैं उसके 31 पेयर होते हैं और जो उनसे स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं उनके 12 पेयर होते हैं। अब जो उनका सबसे बड़ा हिस्सा है वो फोर ब्रेन है, यानी कि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम और उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को भी आगे 2 पार्ट में तकसीम किया गया है, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये दोनों हमारी बॉडी में बहुत मेन काम करते हैं, क्योंकि एक जो है क्योंकि राइट वाला हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी क्रिएटिविटी, म्यूजिक वगैरह है, और लेफ्ट वाला से हमारी राइटिंग, अरिथमेटिक वगैरह वगैरह से जो से काम होते हैं वो होते हैं। अब ये दोनों तो बहुत मेन पार्ट हो गए हैं। उसके नीचे आता है हमारा थैलामस। थैलामस जो होता है वो बिल्कुल फोरब्रेन के नीचे होता है और ये कुछ बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है, वो छोटा सा पार्ट होता है, वो भी थैलामस के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मतलब बुखार वगैरह में, हंगर, हमारी भूख को और हमारी थर्स्ट यानी कि हमारी प्यास को, तो इन तीनों को कंट्रोल करता है। और इसके बाद हमारा आता है मिड ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, लेकिन ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब जब कोई भी नर्व आती है, जब भी कोई नर्व आती है जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो होती है वो जो डिटेक्ट करती है स्टिमुलाई को, उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। वो हमारे जाती है फोर ब्रेन तक और वो हमारे मिड ब्रेन तक जाती है, सॉरी। तो मिड ब्रेन के अंदर वो उसको फिर कहता है, फिर वो उसको बिल्कुल सही पार्ट में भेजता है कि दिमाग के किस पार्ट में इसको जाना चाहिए, जो कि एक बहुत मेन काम है, वरना गलत पार्ट तक जा सकता है और हमारा पूरा जो है ना वो जिसम बिल्कुल गलत काम कर सकता है। तो उसके बाद हमारा आता है हैंड ब्रेन। ये दिमाग में सबसे नीचे होता है, लेकिन ये बहुत से काम करता है। इसके अंदर एक होता है सेरिब्रल और उसके बाद इसके अंदर होता है एक मेडुला ऑब्लंगेटा, जहाँ पे ये मेडुला ऑब्लंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है, और इसके अंदर एक होता है पोन्स। अब मेडुला जो होता है, पोन्स होता है, वो हमारी बॉडी में एक्यूरेट मूवमेंट करता है, यानी कि अगर हम खड़े हैं तो ये हमारी मेरी बॉडी को बैलेंस करेगा, अगर मैं भाग रहा हूँ ये तब भी बैलेंस करेगा, और अगर मैं गिरते गिरते खड़ा हो गया हूँ फिर भी बैलेंस करेगा, और गिरने के बाद जो मैं रिएक्ट करूंगा वो सारा पोन्स करता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि इसके बगैर अगर ये किसी इंसान का इफेक्ट हो जाए तो वो फौरन मर सकता है, क्योंकि जब सारे पार्ट्स हमारे ब्रेन के सो जाते हैं तब मेडुला ऑब्लंगेटा काम करता है, जैसा कि ये हमारी हार्ट बीट को और हमारे सांस लेने को कंट्रोल करता है। और आप सबको तो पता ही है कि अगर हमारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी तो हमारे तुम्हारे ना पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर उसका एक ये सबसे बड़ा नुकसान, उससे कोई भी इंसान फौरन मर सकता है, क्योंकि फिर खून जो उधर रुक जाएगा और पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। और उसके बाद ये ब्रीथिंग करता है, यानी कि इंसान को 1-2 मिनट नहीं फौरन नहीं मर जाए, क्योंकि ब्रीथिंग को भी यही हमारा पार्ट कंट्रोल करता है। अब मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में।